Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Wahur. Student, our today's concept is empirical formula. Now this one is last lecture of your current topic, Introduction to Analytical Chemistry. Now in case of Introduction to Analytical Chemistry, the all important concept which are necessary for your entrance examination, that point of view we have covered, like stoichiometry, mole concept, okay, how mole and stoichiometry are related to each other. Okay, now the last part of this topic we are going to discuss, that is empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. Now molecular formula you know very well. The definition of molecular formula: the formula which indicates actual number of atom or elements in a given molecule. What is your molecular formula? The formula which indicates actual number of atom or elements in a given molecules or in a given compounds. Molecular formula. Now our concept is empirical formula. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, बाय यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये सब कंसेप्ट विथ वन या टू एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू कवर. हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वन बाय वन स्लोली हम लोग स्टार्ट करेंगे. नाउ फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन. एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? सो द फॉर्मूला which indicates the simplest whole number ratio. A formula, example में मैं बताऊंगा, a formula which represent or a formula which indicates the simplest whole number ratio of constituent particles, atom or elements present in any compounds or present in any molecule, and that is called as empirical formula. So student, what is your empirical formula? The formula which indicates or the formula which represent, क्या represent करेगा वो, क्या indicate करेगा, या which gives the information, yes, which indicates simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio of constituent atom elements present in any compounds or molecules. Present in any compound or molecules. Any compound or molecule is called as empirical formula. Is called as empirical formula. 3 examples मैं cover करूँगा. तो what is your empirical formula? The formula which indicates simplest whole number ratio. The formula which indicates simplest whole number ratio of constituent atom or elements present in any compound or molecule is called as a, example लिखता हूँ, suppose acetic acid. Now what is molecular formula of acetic acid? आप लोगों ने 10th में स्टडी किया, it is called as vinegar. इसको vinegar बोलते हैं. Now here CH3COOH, this is the acetic acid. CH3COOH means we can say how many carbon atoms are there. कितने carbon atoms है इधर? 2. So we can write here C2. How many hydrogen atoms are there? H3 and 1. 4 hydrogen atoms are there, and last one is here oxygen O2. Now this is the molecular formula of acetic acid. कितने carbon है? 2. How many hydrogen atoms are there? 4. How many oxygen atoms? 2. So what are the constituent particles, constituent atom or elements of acetic acid? अब acetic acid किससे मिलकर बना हुआ? तो आप लोग लिखेंगे कार्बन रेस्टो hydrogen raised to oxygen. Okay, then write how many carbons are there? 2 raised to hydrogen, 4 raised to oxygen 2. अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? 2 का टेबल स्टार्ट करो, 1 raised to 2 raised to 1. अब ये 1 क्या है आपका? कार्बन.
2 क्या है हाइड्रोजन, 1 क्या है ऑक्सीजन. सो इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला बिकम C1H2O1. What is empirical formula of acetic acid? C1H2O1. So this is the empirical formula. So molecular formula और empirical formula इसमें difference क्या रहता है पता है? molecular formula में अपन actual number of atoms मतलब वो कितने प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहां लिखा 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन. और एम्पिरिकल फॉर्मूला में अपन क्या फाइंड आउट करेंगे उसका सिंपलेस्ट रेशियो. क्या फाइंड आउट करेंगे अपन उसका सिंपलेस्ट रेशियो. बट दैट रेशियो शुड बी होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. एंड दैट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला. नाउ वन होमवर्क इज गिवन टू यू. फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल. Find out the empirical formula of ethyl alcohol. Now the ethyl alcohol is, अगर आप लोग देखेंगे ethyl alcohol, it is C2H5OH. What is ethyl alcohol? C2H5OH. अब इस पर से आप लोग इसका empirical formula find out करो. पहले कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिखो. कार्बन रेस टू हाइड्रोजन रेस टू ऑक्सीजन. फिर कार्बन कितने हैं वो लिखो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन कितना है 1. सो 2 रेस टू 6 रेस टू 1 और फाइंड आउट करो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आता है. वाटर का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करो. इन मेनी केसेस एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी सेम. बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है सेम आता है. इट मे पॉसिबल. सो डियर स्टूडेंट दिस इज आवर टुडेज लेक्चर. वह आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो फार वी हैव डिस्कस व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. यहां तक मैंने क्या डिस्कस किया हो क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है. अब अपन आगे कवर करेंगे 20 मिनट्स हाउ टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड हाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब देखो ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले how to find out the empirical formula and molecular formula and how empirical formula and molecular formula are related to each other. ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं. हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. अपन क्या डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. आई होप यू हैव रिटन दिस पार्ट. आपका वीडियो पॉज करके लिखा करो आप लोग. नाउ माय कंसेप्ट इज हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ये देखो ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन रहता दिस पॉइंट आल्सो हेल्प अस टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूं वाटर मॉलिक्यूल. Yes, I have written here water. Okay, now the molecular formula of water is H2O. Molecular formula of water is H2O. Now percentage composition means we have to find out in 1 mole of water. एक वाटर में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा एंड ऑक्सीजन कितना रहेगा उसका अपने को परसेंटेज फाइंड आउट करना है. परसेंट मतलब 100. तो अपन यहां कंसीडर करेंगे 100 ग्राम. In 100 gram, how many gram of hydrogen is present and how many gram of oxygen is present? अब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या रहता है टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स. नाउ वी विल फाइंड आउट हियर परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर हाइड्रोजन एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर ऑक्सीजन. इसके लिए बेस्ट मेथड क्या रहता है पता है. Now we have to find out percentage composition of hydrogen. वो एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखो. वो एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. अब अगर मैं वाटर देखूंगा सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. अगर मैं वाटर देखूंगा तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आता 18 ग्राम पर मोल. What is molecular mass of water? 18 ग्राम पर मोल. तो मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा उसको 18 से. श्योर यस. अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे 18 से. नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर 2. H2 मतलब एक हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, 2 हाइड्रोजन का 2. सो वी विल टेक हियर 2 by 18 परसेंट मतलब into 100.
यहाँ मुझे अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ होल कंपाउंड या मॉलिक्यूल इज 18 into 100. अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा 1, दिस बिकम 9, सो दिस बिकम 1/9 into 100. अब 1/9 into 100 मतलब 100/9. अब 100 और 9 से मैं 100 को डिवाइड करूंगा, सो दिस बिकम 11 9 99, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा. ओके, 11.11 समथिंग आपका क्या रहेगा यहाँ पर आंसर. सो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आएगा 11.11. हाँ, अब हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आएगा 11.11%. लाइकवाइज वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. अब अगर हाइड्रोजन 11.11% है, नियर अबाउट 89.9% क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन. फाइंड आउट करके देखो, फाइंड आउट करके देखो. नाउ 2 8 16, 2 9 18. अब डायरेक्टली 800 डिवाइडेड बाय 9 कवर करो, डेफिनेटली योर आंसर विल बी लाइक 89.1 समथिंग आपका आंसर आएगा. कितना आंसर आएगा 89.9. एग्री, 89.9 ये आपका हो, या 88.9, सॉरी 88.9 ये आपका आंसर हो जाएगा. सो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपन कैसा फाइंड आउट करते हैं, क्या एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट्स जिसका मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ होल मॉलिक्यूल. अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, आप लोगों को पता है. 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 18. यहां मैंने 2 कहां से लाया, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1. नाउ 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, देयरफॉर 2 डिवाइडेड बाय 18 into 100. सो ये मेथड रहता है टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ये मेथड क्या रहता है टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. अगर आप लोग ये एग्जांपल देखेंगे, यहां इसने मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर दिया. क्या दिया उसने मुझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O, एंड बाय यूजिंग दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी हैव फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स. अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स बोलो या परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो ये मेथड रहता है परसेंटेज कंपोजिशन का. अब देखो स्टूडेंट, यहां तक हमने जो स्टडी की है वो क्या स्टडी की है, क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, देन how to find out the empirical formula, what is the difference between molecular formula and empirical formula, and how to find out the percentage composition if molecular formula is given. मुझे molecular formula दिया तो मैं क्या find out कर सकता हूँ, percentage composition. देखो एक्चुअली अपना जो लेक्चर है अपने को क्या उसमें स्टडी करना है, व्हाट वी हैव टू डिस्कस, हाउ टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. मेरा कंसेप्ट क्या है कि मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसा फाइंड आउट करूंगा. If the percentage composition is given, अगर उसने मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसा फाइंड आउट करूंगा, हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर से इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन. लेकिन अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया तो हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब इसके कुछ रूल्स रहते हैं, हार्डली 3-4 रूल्स है, वो सब अपना बेसिक कंसेप्ट में कवर हुआ है डेफिनेटली. अब वो रूल्स विथ वन प्रॉपर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा, अलग से एक्सप्लेन नहीं करता हूं. नाउ वी आर टेकिंग वन एग्जांपल टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. एक एग्जांपल के थ्रू अपन कवर करेंगे. नाउ वन क्वेश्चन इज गिवन टू यू इन अ कंपाउंड. एक क्वेश्चन में दे रहा आपको, इन अ कंपाउंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, देन percentage of hydrogen and percentage of oxygen is given to you. In a compound, percentage of carbon, percentage of hydrogen. Percentage of carbon is given 37.5%, hydrogen is given 12.5%, and oxygen is given 50%.
Okay, now in a compound, percentage of carbon, hydrogen and oxygen is given to you. Find out its empirical formula. मैं EF लिखता हूँ. EF क्या इंडिकेट करेगा? Empirical formula. Find out empirical formula if molar mass of compound is 64 gram per mole. Molar mass of compound is 64 gram per mole, and find out its molecular formula. Find its molecular formula. Now this one is your question. आपका ये क्वेश्चन है, एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन में उसने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है. किस किस का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ oxygen, and what we have to find out? We have to find out the empirical formula and we have to find out molecular formula. क्या मुझे find out करना है? empirical formula या molecular formula. एकदम simplest method से अपन start करेंगे. Now percent इसका मतलब रहता 100. अब while find out the empirical formula and molecular formula, पहला step या पहला उसका रूल देखो क्या रहता है. व्हाट इज फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला? पहला स्टेप रहता है द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट्स. सम ऑफ परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट. अब सम ऑफ परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. दिस एडिशन शुड बी 100. The sum of percentage of given elements, it should be 100. अब कार्बन is given 37.5 प्लस हाइड्रोजन 12.5 प्लस ऑक्सीजन 50. ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 50. इसका सबका एडिशन करो, डेफिनेटली वो कितना आएगा? 100. अगर ये 100 नहीं रहा तो नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट इज ऑक्सीजन. The percentage of given element should be 100. If it is less than 100 तो remaining जो बचेगा वो क्या रहेगा? ऑक्सीजन. जैसे आपको 3 एलिमेंट्स दिया, वो तीनों परसेंटेज का एडिशन आ रहा है. फॉर एग्जांपल 80. कितना एडिशन आ रहा है? 80. तो ये 80 वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की है. अब बाकी जो बचेगा वो ऑक्सीजन है. सो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80, 20%. समझ में आ रहा है आपको? अगर ये टोटल 100 नहीं हुआ तो रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ये आपका फर्स्ट रूल हो गया. ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट रूल टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए पहला रूल क्या रहता है? द परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट शुड बी 100 एंड इफ इट इज नॉट 100 देन रिमेनिंग परसेंट इज ऑक्सीजन. डेफिनेटली वो क्या रहेगा? ऑक्सीजन. ये आपका पहला रूल हो गया. नाउ सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज इनटू ग्राम. अब जो गिवन परसेंट है उसको मैं काय में कन्वर्ट करूंगा? ग्राम में. अब देखो यहां अपन जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करते, एक तुम्हारे माइंड में बैठा कर रखो. जहां यहां आप लोग जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करते वो क्या कंसीडर करके आप लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई परसेंट मतलब 100 और वो जो गिवन मॉलिक्यूल है वो 100 ग्राम है और वो 100 ग्राम में इतना परसेंट एक्स है, इतना परसेंट वाई है, इतना परसेंट जेड है. अब परसेंट मतलब उतने ग्राम. जैसे मैं यहां बोल रहा हूं कि 100 ग्राम मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें 37.5% कार्बन मतलब 37.5 ग्राम कार्बन है. वो परसेंट को अपन क्या कंसीडर करते हैं? ग्राम. सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर सेकेंड स्टेप क्या है? मेरा सेकेंड स्टेप कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम. कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम. अब जब परसेंटेज को आप लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ वहां से परसेंट हटा देने का. नाउ हियर कार्बन बिकम 37.5 ग्राम. देन योर हाइड्रोजन बिकम 12.5 ग्राम. एग्री? हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका? 12.5 ग्राम. एंड ऑक्सीजन बिकम 50 ग्राम.
ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका 50 ग्राम। तो ये एक बात रखो, सेकंड स्टेप क्या है मेरा, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। जो परसेंट दिया हुआ रहता है वही ग्राम रहता है, वो कंसिडरेशन रहता है कि भाई 100 ग्राम मॉलिक्यूल है और वो 100 ग्राम में इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम हाइड्रोजन है और इतना ग्राम ऑक्सीजन है। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वॉच फुल video and note down each and every point in your notebook. This is your basic concept. This is the base of your entrance examination. पूरा वीडियो वॉच करो, एक एक पॉइंट नोट डाउन करो, एंड इफ एनी क्यूरी इज देयर, ओके, कमेंट्स इन योर कमेंट्स बॉक्स। ओके, नाउ पहला स्टेप मैंने गिवन परसेंटेज का एडिशन किया, वो 100 आया। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो परसेंटेज था उसको मैंने कन्वर्ट किया ग्राम में। अब यहां से मेरा काम स्टार्ट होता है। नाउ थर्ड स्टेप, अब मैं बढ़ रहा हूं स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप में क्या करते, नाउ कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स। कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स। देखो मैंने लिखा तो उधर कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल, लेकिन अगर फैक्ट मैं बोलूंगा तो मैं ऐसा खाने के बजाय ऐसा खा रहा हूं, ऐसा खाने के बजाय मैं उल्टा खा रहा हूं। कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल, उससे अच्छा अपन यहां क्या बोलेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, बेटर वे मैं क्या बोलूंगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। और सबको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं अपन, n। और n नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, n इज इक्वल टू गिवन मास, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल्स, उससे अच्छा मैं आपको क्या बोलूंगा, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोलेंगे अपन, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। एंड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास में फॉर्मूला क्या आता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो कार्बन का, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो हाइड्रोजन का, एंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो ऑक्सीजन का। चलो अपन फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ पहला पॉइंट, मोल्स ऑफ कार्बन, moles of carbon. Second point, moles of hydrogen. Okay, moles of hydrogen. And third point, moles of oxygen. Third point क्या है मेरा, moles of oxygen. Now carbon in gram it is given 37.5. 37.5 divided by, now molar mass of carbon is 12. Molar mass of carbon is 12. Now hydrogen it is given 12.5 divided by molar mass या atomic mass of hydrogen is 1. Oxygen 50 divided by atomic mass या molar mass of oxygen is 16. मोलार मास या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। अब ये जो कैलकुलेशन है इससे आप लोग फाइंड आउट करो नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर आप लोग एक कैलकुलेशन करेंगे, सो दिस बिकम 3.125, दिस बिकम 12.5 और ये हो जाएगा आपका 3.125। घर जाके चेक करो। अब 16 3 is 48, रिमेनिंग 2, then 20, 16 1s are 16, remaining 4। लाइकवाइज आप लोग कवर कर सकते हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन है, घर जाके फाइंड आउट करो। तो थर्ड स्टेप में मैंने क्या फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ मोल्स। कन्वर्ट दिस ग्राम, ये जो मुझे ग्राम दिया हुआ था ये ग्राम को मैंने काय में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू नंबर ऑफ मोल्स। और फोर्थ पॉइंट में मैं फाइंड आउट करूंगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, simplest whole number ratio. In last step we will find out the simplest whole number ratio. देखो कैसा मैं फाइंड आउट करूंगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना आया 3.125, हाइड्रोजन कितना आया 12.5 एंड ऑक्सीजन कितना है 3.125। अब मैं यहां फाइंड आउट करूंगा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ पहले कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट्स,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मैंने यहां फाइंड आउट किया तो कितना आया 3.125 डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट रेशियो, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब मेरे पास में 3.125 है, 12.5 है, 3.125 है, ये तीनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 3.125, तो इट इज डिवाइडेड बाय 3.125। अब मैं इस सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर रहा हाइड्रोजन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है 12.5 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये तीनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है 3.125। ओके, नाउ फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 3.125 डिवाइडेड बाय तीनों का स्मॉलेस्ट वैल्यू 3.125। आप लोग घर जाके चेक करो, स्ट्रेट वे दिस क्वांटिटी बिकम 1 and 1। अब ये अगर मैं 3 और 12 का रेशियो देखूंगा तो ये आता आपका 4, 3 4 जा 12, मतलब ये नियर अबाउट आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। मैंने ये फाइंड आउट किया सिंपलेस्ट रेशियो। क्या फाइंड आउट किया मैंने सिंपलेस्ट रेशियो। कैसा फाइंड आउट किया मैंने सिंपलेस्ट रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो था वो तीनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू था सबको मैंने उससे डिवाइड किया। देखो यहां पर, और मैंने ये क्या फाइंड आउट किया सिंपलेस्ट रेशियो। तो डियर स्टूडेंट, ये मेथड था आपका फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। पहले एडिशन, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद फाइंड आउट द सिंपलेस्ट रेशियो। अगर आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन कहां से स्टार्ट किया था आपको पता है, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। That simplest whole number ratio is your empirical formula। अब मुझे एक बात बोला, सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन का कितना आ रहा है यहां पर 1, हाइड्रोजन का कितना आया 4, ऑक्सीजन का कितना आया 1, मतलब मेरे पास में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन। तो इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला बिकम, देखो कार्बन 1, hydrogen 4 and oxygen 1, और we can write here CH4O। ये क्या हो जाएगा मेरा CH4O is my empirical formula, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो को मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलता या एम्पिरिकल फॉर्मूला को सिंपलेस्ट रेशियो बोलता। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन कितना आया 1, तो C1, हाइड्रोजन का कितना आया 4, H4 एंड ऑक्सीजन कितना आया 1। सो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, दिस गिवन प्रॉब्लम। अब ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया था उसके बेस पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है आपका C1H4O1, मतलब मेरे मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन इज देयर। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये मेथड रहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का। तो क्या करेंगे आप लोग, 4 बेसिक रूल्स याद रखने का। पहले इसमें क्या करने का, द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स शुड बी 100, अगर वो 100 नहीं हुआ तो रिमेनिंग 1 इज योर ऑक्सीजन। उसके बाद में परसेंटेज को कन्वर्ट करो ग्राम में, सिर्फ परसेंटेज सिंबल निकाल देने का, वो एज इट इज रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, वो मैं कैसा फाइंड आउट करूंगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास या एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। और फिर सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू अमंग दैम। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये मेथड से मैं फाइंड आउट करता हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आगे अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसने मुझे क्या बोला, मोलार मास ऑफ कंपाउंड 64 ग्राम पर मोल, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरा आधा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का था, मैंने वो किया। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब वो कैसा फाइंड आउट करेंगे, पहले जल्दी से राइटिंग कंप्लीट करो, राइटिंग कंप्लीट करो। वो कैसा फाइंड आउट करेंगे, पॉज योर वीडियो एंड कंप्लीट योर राइटिंग। सी हियर हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, आई होप यू हैव रिटन दिस पार्ट, आपने लिखा होगा। अब मेरे पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, सी हियर मेरे पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, एंड व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट गिवन मॉलिक्यूल। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया C1H4O1।
ओके अब मुझे फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहता मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू आर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू आर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। आर इज द फैक्टर। Molecular formula is equal to R into empirical formula. But what is R? R is equal to molar mass, given molar mass upon empirical formula mass. R क्या हो जाएगा आपका गिवन मोलार मास डिवाइडेड बाय EF क्या आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उससे मैं उसका मास फाइंड आउट कर सकता हूं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का 1 है तो 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 हो गया। 12 प्लस 4 16। ऑक्सीजन का कितना है 16। तो इसका अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास देखूंगा तो वो कितना आएगा 32 ग्राम पर मोल। यस एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ गिवन कंपाउंड वो कितना आ जाएगा 32 ग्राम। आपने बेसिक कंसेप्ट में स्टडी किया है। एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 1 ऑक्सीजन का 16। सो 12 प्लस 4 प्लस 16 वो कितना हो रहा 32 ग्राम। तो ये मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला से फाइंड आउट किया। मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास उसने मुझे दिया था 64। सो R इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 32। R ये क्या हो जाएगा 2. So put this value here. We can write molecular formula is equal to R into empirical formula. R is 2 into empirical formula is C1H4O1. So its molecular formula become 2 into 1. Molecular formula हो जाएगा C2, 2 4 8, C2H8O2. क्या आएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H8O2. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज गिवन टू यू। तो याद रखेंगे पहले अपन परसेंटेज कॉम्पोजिशन से क्या फाइंड आउट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से अपन आर फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कैसा फाइंड आउट करेंगे आर फैक्टर? मोलार मास उसने अपने को दिया था 64 ग्राम पर मोल और मैंने ये EF मास मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया उसका मैं मास फाइंड आउट करूंगा, उसके एटॉमिक वेट की एडिशन करने का अपने नंबर ऑफ टाइम सॉल्व किए। ये R फैक्टर फाइंड आउट किए, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ R here, put the formula of empirical and now multiply this, you will get this molecular formula. So what is the empirical formula of given compound? CH4O and molecular formula C2H8O2. So student ये एक simple method था to find out the empirical formula. Hope you will understand all these points. So try to remember what is molecular formula and what is empirical formula. If molecular formula is given to you, how to find out the percentage composition. और अगर percentage composition दिया तो मैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा फाइंड आउट करूंगा, ये उसका एक सिंपलेस्ट मेथड था। आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट याद रहना चाहिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में कैसा फाइंड आउट करूंगा कि भाई गिवन मास मतलब जो मास रहता है वो एलिमेंट्स का टोटल मॉलिक्यूल के मास से उसको डिवाइड करेंगे। जैसे अपने हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन थे तो वो हो गया 2 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलार मास 18 है, 2 डिवाइडेड बाय 18, तो वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे से मैं एम्पिरिकल फार्मूला कैसा फाइंड आउट करूंगा, पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो और नंबर ऑफ मोल्स पर से सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करो, सिंपलेस्ट रेशियो। एंड दैट सिंपलेस्ट रेशियो इज कॉल्ड एज, वो सिंपलेस्ट रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारा empirical formula. Write its empirical formula and by looking to these 2 points find out the molecular formula. Now pause your video and note down this concept. I hope you will understand what is empirical formula and what is molecular formula. Okay, a simplest method or way to find out the molecular formula and empirical formula. Okay, thank you.